Question of exercise 3.7 is find 0.6 divided by 2. Now you know that when sign of division is changing into sign of multiplication, the next term will be reciprocal. Okay, reciprocal means denominator comes in the form of numerator and numerator comes in form of denominator. Okay, so when sign of division is changing into sign of multiplication, the next term will be reciprocal. So look at here, 0.6 divided by 2. When sign of division into changing into sign of multiplication, the 2 will be reciprocal, यानी 1 by 2 and the form of 1 by 2. 0.6 पॉइंट हटाने के बाद ये कितना बन गया 6/10, क्योंकि पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, सो हमारा एक ज़ीरो लगेगा. 6/10 मल्टीप्लाई 1/2, 2 3 ज़ा 6, यू हैव 3/10. 3/10 in decimal form can be written as 0.3. Part number 4, 2.48 divided by 4. Then 2.48 multiply. Sign of division changing into sign of multiplication, the 4 will be reciprocal. So 4 comes in the form of 1/4. So 248. अब यहाँ पे पॉइंट हटाने के बाद कितना आ रहा है? पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, सो यू हैव 100. तो नीचे कितना आ गया 100. सो 2.48 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 1/4. ये 2 के टेबल में कट हो जाता है. आफ्टर कटिंग you have 62/100 and 62/100 can be written as 0.62 in the decimal form. Part number 9th is 18.84 divided by 4. Part number 9th of the question number first. Okay, so 18.84 जब आप लोग डेसिमल को हटा रहे हो, डेसिमल के पीछे कितनी ज़ीरो है, कितने डिजिट्स है 2, so you have 100. So 1884 divided by 100, sign of division changing into sign of multiplication, the 4 will be reciprocal, so 1/4. After cutting, ये 4 के टेबल में कट हो रहा है, so after cutting you have 471 divided by 100. अब यहाँ पॉइंट के बाद कितने ज़ीरो है 2, तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट छोड़ेंगे, 2 डिजिट के बाद हम लोग पॉइंट लगाएंगे. यू हैव 4.71. The second is find the average of 4.2, 3.8 and 7.6. So how we find the average of any numbers? We find average. For we find average, we add up all the numbers and divide it by number of total numbers. Okay, so कितने हमारे पास कितने डिजिट्स है इस बार, हमारे पास नंबर कितने हैं 4.2, 3.8 एंड 7.6. आफ्टर एड अप दीज 3, ये 3 है ना हमारे पास, सो we divided by these numbers, the sum of these numbers by 3. So the average of numbers is 4.2 plus 3.8 plus 7.6. Sum of all these numbers divided by 3. Total number of. Okay. So 15.6 divided by 3. 3 5 is 15. 3 2 is 6. You have 5.2. The average of numbers is 5.2. Question number 3rd is find 5.8 divided by 10. It's just similar like question number first. Now look at here. Question number 3rd is 5.8. पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 1. सो कितना आएगा 10. एक ज़ीरो लग जाएगी पीछे. सो 58/10 मल्टीप्लाई बाय व्हेन यू चेंजिंग द साइन ऑफ डिवीजन इनटू साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन, द 10 विल बी रेसिप्रोकल, सो यू हैव 1/10. सो कितना हो गया 58/10 10 ज़ा 100. सो कितने डिजिट अब छोड़ेंगे, अब यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट है. अब हमारे पास 100 में कितने ज़ीरो हैं 2 ज़ीरो हैं, तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट छोड़ेंगे हम लोग, तो 58. अब हमारे पास 2 डिजिट छोड़ के यानी 58 से आगे, तो आगे आप ज़ीरो लगा सकते हैं. ओके, नंबर 3rd पार्ट नंबर 2, 52.5 डिवाइडेड बाई 10. सो रिमूव द डेसिमल, यू हैव 525/10 multiply by 1/10 after changing the sign of division into sign of multiplication. Now 525/100, 10 10s are 100. अब देखो पॉइंट फिर ज़ीरो कितने 2, पॉइंट के बाद 2 डिजिट छोड़ेंगे हम लोग, यानी 2 डिजिट छोड़ के हमारा पॉइंट लगेगा
25 छोड़ दिया पीछे से, यानी आगे 5.25। जितने ज़ीरो नीचे आएंगे उतने ही डिजिट छोड़ के हमारा पॉइंट लग जाएगा। पार्ट नंबर 7, 1.185 डिवाइडेड बाय 10। So similarly, after removing the decimal, you have 3 digits। देखो 3 डिजिट्स हैं तो कितने ज़ीरो लगेंगे, 3 ज़ीरो, यानी कि थाउजेंड्स। यू हैव 1185 डिवाइडेड बाय 1000, मल्टीप्लाई बाय 1/10 बिकॉज ऑफ sign changing the sign of division into sign of multiplication, the 10 will be reciprocal। so now 10 को 1000 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 10,000। so apply the decimal after 4 digits, so 1 2 3 4, तो आफ्टर 4 डिजिट्स तो कितना हो गया, 1 2 3 4, ये 4 के 4 डिजिट्स आपने छोड़ दिए, पॉइंट लगा दिया, आगे क्या लग गया आपका, 0। ओके, सिमिलरली क्वेश्चन पार्ट नंबर 10। नंबर 4, फाइंड 2.7 into divided by 100। So look at here, 2.7 divided by 100. After removing decimal, you apply 27 by 10. You apply 1 0. So 27 by 10. Multiply by 100 क्या हो जाएगा, 100 will be reciprocal. So multiply by 1 by 100. You have 27 by 1000. So apply the decimal after 3 digits। so 27 को छोड़ा, अब हमारे पास 27 तो 2 डिजिट था, तो 3 डिजिट बनाने के लिए मैंने एक 0 और लगा दिया, हो गए 3 डिजिट्स। देन डेसिमल, डेसिमल के बाद भी क्या लगा दिया, 0। सो जितने डिजिट। नंबर 6 ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 इज 88.63 डिवाइडेड बाय 100। सो पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, 2, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 100। 100 मल्टीप्लाई 100 कितना हो जाएगा, 10,000। अब अप्लाई द डेसिमल आफ्टर 4 डिजिट्स। सो ये तो 4 डिजिट्स खुद ही हो गया, आपने 0.0 लगा दिया। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 10, पॉइंट के बाद कितने डिजिट, 1, तो क्या लग जाएगा, 10। सो 4326 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 1 बाई 1000, 1 बाई 100। सो कितना हो गया, इसे मल्टीप्लाई करने के बाद 1000 ही बन गया। यू अप्लाई द डेसिमल आफ्टर 3 डिजिट्स। सो 4 यहाँ आ जाएगा 4.326। Okay, 6th is find 3.25 divided by 0.5। so look at here, 3.25 after removing the decimal you have 100, 325 divided by 100 divided by, यहाँ भी remove करो decimal, तो after remove the decimal you have 5/10 because decimal के बाद कितने digits हैं, 1। So 325 divided by 100. Now sign of division changing into sign of multiplication. The next term will be reciprocal. 5/10 comes in the form of 10/5. So 10 से ही कट गया, मतलब ये कितना हो गया, 10। 0 से 0 कैंसिल करने के बाद यहाँ कितना आ गया, 10। So ये 5 के टेबल में कट हो जाता है, 5 6 30, 5 5 25। So you have 65/10 and in the form of decimal 65/10 will be comes into 6.5। Number 7th is 236.6 divided by 0.26। so after removing decimal कितने डिजिट्स हैं, 1। आफ्टर डेसिमल कितने डिजिट है, 1, तो कितना लग जाएगा, 10। 10 हो जाएगा। 2366 डिवाइडेड बाय 10 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ डेसिमल फॉर्म को चेंज करो, तो कितना हो जाएगा, 26/100। After changing sign of division into sign of multiplication, you have next term will be reciprocal, and 26/100 it comes into the form of 100/26. Now after cutting you have 910 is your answer. Number 7th, each side of regular polygon is 2.5 centimeter in length। अब रेगुलर पॉलीगन की जो साइड्स हैं, हर साइड की लेंथ गिवन है आपको। यू नो ऑल द साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन्स आर सेम, ऑल द लेंथ ऑफ ऑल साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन्स आर सेम। ओके, सो हर साइड की जो लेंथ है वो गिवन है 2.5 सेंटीमीटर। द पेरीमीटर ऑफ द पॉलीगन इज 12.5 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ पॉलीगन आल्सो गिवन। हाउ मेनी साइड्स डज द पॉलीगन हैव। अब आपको बताने कि रेगुलर पॉलीगन की साइड्स कितनी है, नंबर ऑफ साइड्स आपको फाइंड आउट करनी है। सो यू हैव लेंथ ऑफ पॉलीगन, सबसे पहले लेट नंबर ऑफ साइड्स। अब नंबर ऑफ साइड्स हमें जो निकालनी है, मैंने पहले बताया था
कि वो हम क्या करते हैं, लेट करके चलते हैं, मान के चलते हैं. So let number of sides is equal to x, length of regular polygon is equal to 2.5 centimeter. Perimeter of polygon, therefore perimeter of polygon is 12.5 centimeter. This is also given. Because of regular polygon has same length of for all sides. Regular polygons की सारी sides की जो length है वो same होती है. So therefore perimeter is equal to number of side multiplied by length of each sides. Perimeter is given 12.5 is equal to number of side is x centimeter and length of each side is x centimeter नहीं, number of side is x and length of each side is no, हमें x चाहिए. So x को एज इट रहने दो, 12.5 को इधर रहने दो, ये कितना होगा 2.5 इधर मल्टीप्लाई का, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड का. सो आफ्टर सॉल्विंग you have x is equal to 5 centimeter, therefore number of side is equal to 5. ठीक है. Question is a car covers a distance of 89.1 kilometer in 2.2 hour. एक कार ने जो है वो 89.1 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है, लेकिन इन 2.2 आवर्स में व्हाट इज़ द एवरेज डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन 1 आवर. तो एक आवर में वो कितना एवरेज डिस्टेंस कवर करेगी, आपको ये चीज़ पता है. डिस्टेंस कवर्ड बाय अ कार इज इक्वल टू 89.1 किलोमीटर. टाइम टेकन इज इक्वल टू 2.2 आवर्स. सो डिस्टेंस ट्रेवल इन 1 आवर इज इक्वल टू 89.1 डिवाइडेड बाय 2.2. वी हैव 40.5 kilometers. So car cover distance in 1 hour is 40.5 kilometers.